کہ لوگ اب جو آ جائیں گے تو پھر جوائن کرتے جائیں گے اور ہم لوگ جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. اچھا، جیسا کہ ہم نے پہلا سیشن بڑے تفصیل سے کیا تھا، مجھے بہت سارے کوسچنز بھی ملے، تو آج ہم سیشن کی ترتیب کچھ ایسے رکھیں گے کہ آج ہم پہلے اپنا یہ ٹاپک کمپلیٹ کریں گے اور کچھ کوسچنز جو ہے جو کہ ریٹن فارم میں ہمارے پاس آئے تھے، اینڈ پہ میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ٹائم اس پہ بھی لگا لیں. تو آج کا ہمارا سیشن ہے جی پرفارمنس مینجمنٹ پہ. سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس میں ہم لوگ 3-4 چیزیں ڈسکس کریں گے بہت تفصیل کے ساتھ. ایک تو ہم پروبیشن ایویلویشن کی بھی بات کریں گے کہ پروبیشن ایویلویشن بھی پرفارمنس اپریزل کی ہی ایک ٹائپ ہے اور وہ بھی جو ہے تو اسی میں ہی کور ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ ہم چلے جائیں گے پھر گول سیٹنگ اینڈ میکنگ پرفارمنس پلانس. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرفارمنس کو ہمیشہ اپریز کرنے کے لیے یا ایویلویٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے گول سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یا پرفارمنس آبجیکٹیوز بنانے ہوتے ہیں. وہ جو ہم بناتے ہیں تو پھر اس کی بیس پہ ہم جو ہے اپریزل کر سکتے ہیں، اور اگر گولز نہیں ہوتے تو پھر آبجیکٹیو سیٹ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے اپریزل کریں گے، اور پھر گول کیسے سیٹ ہونے چاہیے اور گولز میں کیا ہونا چاہیے اس پہ ہم بات چیت کریں گے. پھر ہم جائیں گے پرفارمنس ایویلویشن اینڈ اپریزل کے اوپر، اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور پھر ہم چاہیں گے تھوڑا سا فیڈ بیک کے اوپر کہ ہم کیسے کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنے سٹاف کو، کیونکہ پرفارمنس اپریزل کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ فیڈ بیک ہوتی ہے، اور فیڈ بیک جب تک نہ ہو تو پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ ایک مکمل چیز نہیں ہوتی. آئی ہوپ کہ آپ سب کو کنٹینٹ اور آبجیکٹیو آج کے سیشن کے کلیئر ہوں گے. میں آگے چلتا ہوں. پرفارمنس مینجمنٹ، سب سے پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ پرفارمنس مینجمنٹ اصل میں ہے کیا. اینڈ اٹریٹو پروسیس آف گول سیٹنگ. سب سے پہلے دیکھیں اس پروسیس کا جو سب سے پہلا لازمی پارٹ ہے اور لازمی چیز ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے گول سیٹنگ. کہ گول سیٹنگ کے بغیر، جیسے ابھی میں نے شروع میں کہا، ہم پرفارمنس اپریزل کر ہی نہیں سکتے. پھر اس کا دوسرا پارٹ ہے کمیونیکیشن. سب سے پہلے گول سیٹ کرتے ہیں، پھر کمیونیکیشن سے مراد کے اپنے ہی لوگوں سے اور جس کا پرفارمنس پلان بن رہا ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں. آبزرویشن، پھر جب گول سیٹ ہو جاتے ہیں اور کمیونیکیشن ساتھ ساتھ ہماری چلتی رہتی ہے تو ہمارا آبزرویشن کا فیز بھی شروع ہوتا ہے جس میں کہ ہم پرفارمنس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایویلویشن ٹو سپورٹ، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ایویلویٹ کرتے ہیں. آبزرویشن کے بعد، آبزرویشن کے ساتھ ساتھ اور آبزرویشن کے اینڈ پہ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ 3 مہینے ہو سکتا ہے، 6 مہینے ہو سکتا ہے، 1 سال ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہم پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اور ایویلویشن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا پرفارمنس مینجمنٹ میں کہ ہم نے کسی کو پکڑنا ہے، چوری پکڑنی ہے، مورد الزام ٹھہرانا ہے یا اس کو سزا دینی ہے، بلکہ ایویلویشن ہوتی ہے، پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے سپورٹ کر سکیں، اور سپورٹ کی سینس میں کہ تاکہ پرفارمنس امپروو ہو. اور پرفارمنس کیوں امپروو ہو؟ ریٹین اینڈ ڈیولپ امپلائی فار آرگنائزیشنل سکسیس، تاکہ ہم ان امپلائیز کو ریٹین کر سکیں اور وہ امپلائیز ڈیولپ بھی ہوں، تاکہ آرگنائزیشن اپنے گولز، آبجیکٹیوز حاصل کر سکے اور سکسیس کر سکے. تو اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. تو اس میں 3 سے 4 چیزیں ہیں، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. گول سیٹنگ ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ آبزرویشن ہوتا ہے، اور پھر ایویلویشن فار سپورٹ ہوتا ہے. اور ایویلویشن فار سپورٹ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ اپنی پرفارمنس امپروو کریں، ان کی ڈیولپمنٹ ہو، ان کا لرننگ پروسیس انہانس ہو، تاکہ وہ اپنی اور اپنے ادارے کی سکسیس میں اہم کردار ادا کر سکیں. آئی ہوپ کہ میجورٹی کو یہ کلیئر ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اور پرفارمنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور لوگ ہمیشہ پرفارمنس مینجمنٹ کو پرفارمنس اپریزل کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. تو پرفارمنس اپریزل جو ہے وہ ایک اور چیز ہے اور پرفارمنس مینجمنٹ ایک اور چیز ہے. جی جواد صاحب. پلیز یہ جو آپ نے لاسٹ بتایا ایویلیوشن ٹو سپورٹ، یہ پلیز ریپیٹ کریں گے کائنڈلی. ایویلویشن پر سپورٹ یہ ہوتا ہے جہاں کہ جب ہم پرفارمنس کو اپریز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو رزلٹ آتا ہے، جب آپ پرفارمنس کو ایویلویٹ کرو گے، اپریز کرو گے تو اس پہ 2 سے 3 رزلٹ آئیں گے. یا تو وہ بندہ برا پرفارم کر رہا ہوگا یا اچھا پرفارم کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو اس کو مزید اچھا بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ برا پرفارم کر رہا ہے اسٹاف ممبر، تو آپ نے پھر اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ کون سے ایریاز آف امپروومنٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں
اور आप किस तरह से उसको सपोर्ट कर सकते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाए ताकि वो अपने और अपने इदारे के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। क्लियर है जी? तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा लूप है, इसको हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम गोल सेट करते हैं, फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एंड पे अप्रेजल करते हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल में पता चल गया होगा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम कहते हैं कि ओवरऑल एक प्रोसेस है, बड़ी पिक्चर है, जिसमें हम गोल सेटिंग से लेके अप्रेजल तक जाते हैं, जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक पार्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, जिसमें हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात? क्योंकि अक्सर लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल को कंफ्यूज करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। जैसे मैनेजमेंट को हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। तो परफॉर्मेंस भी इसी तरह से, परफॉर्मेंस को भी मैनेज किया जाता है थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग। क्लियर हो गया जी? हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब टाइप्स ऑफ अप्रेजल की मैं बात करता हूं। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो इसलिए अब मैं दोनों चीजें, कभी अप्रेजल का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, कभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का यूज कर रहा हूँ। तो अब आपने इसके डिफरेंस को, क्योंकि आप समझ चुके हो, तो आपने आप फिर इसको उसी तरह से देख लेना है। अब इसमें होना यह है मेरे भाई कि अब आपने ये करना है कि ये जो आपके परफॉर्मेंस टाइप्स ऑफ अप्रेजल है, जब से सबसे पहले जब बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो प्रोबेशन इवेल्युएशन एक चीज होती है। 3 महीने का प्रोबेशन होता है, 1 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे। तो उसमें हम कुछ गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। और आप याद रखिए, प्रोबेशन के भी हमेशा गोल्स और टारगेट सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी प्रोबेशन खत्म होगा और अप्रेजल की बात करोगे, प्रोबेशन की अप्रेजल की, और अगर आपने गोल सेट नहीं किए तो फिर किस चीज के अगेंस्ट अप्रेजल करोगे? तो गोल सेट करना प्रोबेशन में बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने इसके आगे लिखा है प्रोबेशन परफॉर्मेंस प्लान, कि आप प्रोबेशन पीरियड के लिए परफॉर्मेंस प्लान बनाते हो। प्रोबेशन पीरियड डिपेंड करता है, अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। तो उस 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए आप उसका परफॉर्मेंस प्लान बनाएंगे कि इस 1 महीने में, 3 महीने में या 6 महीने में इन्होंने क्या क्या करना है और क्या क्या टारगेट्स होंगे। तो उसको जब हम प्रोबेशन खत्म होगा, उसके एंड पे उस परफॉर्मेंस प्लान के अगेंस्ट उसका अप्रेजल करेंगे, और उसको हम कहते हैं प्रोबेशन इवेल्युएशन या प्रोबेशन अप्रेजल। अब उसके बाद ये तो हमारा हो गया पहला प्रोबेशन का। फिर जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस में बाज ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एनुअल अप्रेजल कर रही होती है और एनुअल इवेल्युएशन कर रही होती है। ठीक है? और अब इसमें ज्यादा एनुअल सिस्टम ही होता है, बहुत सारी इसमें लॉजिक्स हैं। लोग कहते हैं इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम बार बार करें, और ये एक लेंथी प्रोसेस है, और ये एक, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इदारे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए और लोगों के लिए। कि जब तक कि मुझे पता नहीं चलेगा मैं परफॉर्म कैसा कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को और अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर सकता। जब तक मुझे पता ही नहीं चला रहा कि मैं परफॉर्म कैसा कर रहा हूं, तो मैं अपने करियर में ग्रो नहीं कर सकता। तो मोस्टली इदारों में ये एनुअल अप्रेजल होता है, एनुअल इवेल्युएशन होता है। कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि इसको मिड टर्म भी कहते हैं, और जून के अंदर, जनवरी में अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जून में एक मिड टर्म रिव्यू होता है, और फिर दिसंबर में अप्रेजल होता है। और ये अब मैंने जनवरी, जून और दिसंबर इसलिए कहा कि आइडियली ऐसा होना चाहिए कैलेंडर ईयर के साथ, लेकिन कुछ इदारों के अपने अपने टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड की बहस में हम नहीं जाएंगे। तो मिड टर्म का मतलब होता है 6 महीने बाद, और एनुअल का मतलब होता है 1 साल के बाद। ठीक है जी? और प्रोबेशन मैंने पहले बता दिया, 1 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, डिपेंड करता है इदारे की पॉलिसीज पे, HR पॉलिसीज पे। तो मैं हमेशा, और कुछ इदारे ऐसे भी हैं कि जो कि जी आसिफ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आसिफ साहब, आपने हैंड रेज किया है। हेलो जी जी आसिफ, पूछे। जी सर, मैं रील्स पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। तो सर ये है कि क्या आप ये जो अप्रेजल और इसके फॉर्मेट्स भी होते हैं जो आपने डिजाइन किया? फॉर्मेट्स के बगैर तो कुछ नहीं, फॉर्मेट्स के बगैर तो कुछ नहीं होता।
फॉर्मेट तो होते हैं, फॉर्मेट तो बनाना पड़ते हैं। आप लोगों ने इसके कोई फॉर्मेट्स डिजाइन किए हुए हैं, यानी कि अगर हमें कोई मिल सकते हैं? अच्छा, इसमें अब ऐसा है, मुझे आपका नाम भूल गया है। इसमें ऐसा है कि जी आप गूगल पे भी, आप अभी गूगल पे जाएं आसिफ, तो आपको कोई लाखों की तादाद में फॉर्मेट मिल जाएंगे। मैं भी आपको 2-4 भेज दूंगा, लेकिन इशू ये है कि जब तक कि आप अपने इदारे का फॉर्मेट अपने इदारे की जरूरत के मुताबिक नहीं डेवलप करते, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको हम एचआर की जबान में कहते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक टूल बनाना है, आपने अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक टूल, अब आप बहुत हाई फाई टूल बना लें, गूगल से डाउनलोड भी कर लें, लेकिन आप वो लोगों को समझा ही ना सकें, आपके लोग उसको फिल ही ना कर सकें और वो आपका मकसद ही पूरा ना कर सके, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, बेशक सिंपल से शुरू करें और फिर मुश्किल की तरफ जाएं। टूल्स पे हम बाद में आगे आएंगे, लेकिन अगर अभी हम टूल्स में फंस गए तो फिर हमारी डिस्कशन कहीं और चली जाएगी। मेरा मकसद यहां पे था कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लूं, और टूल्स पे हुआ तो अगले सेशन में या बाद में बात कर लेंगे, और मैं आपसे सिंपल टूल शेयर भी कर लूंगा, वो इशू नहीं होता टूल। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। तो हम आगे चलते हैं। यहां तक आई होप कि सबको क्लियर है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की पहली हमने स्लाइड देखी, और अब हमने थोड़ी सी उसकी टाइप्स ऑफ अप्रेजल पे बात की है, मिड प्रोबेशन इवैल्यूएशन की, मिड टर्म की और एनुअल की। जावेद शाह है या जवाद शाह है जी? सर मेरा ये क्वेश्चन था परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से कि क्या हम जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है जब करें तो इससे बिफोर जो है हम स्टाफ को ओरिएंट करें या नहीं, इसके बारे में? डेफिनेटली जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। हम तो करते हैं, मैं हैंड से बात करता हूँ, हम तो करते हैं, पर इवन स्टाफ का जो है ओरिएंटेशन देते हैं उनसे पहले, प्लान शेयर करते हैं पूरा, मगर ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। जी देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में ये बात की थी कि एचआर डिपार्टमेंट का सबसे, इसमें एंड पे एक स्लाइड भी आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उस पे आपका क्वेश्चन भी उसमें पार्शली एड्रेस भी होगा। एचआर डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को डिजाइन करना, लोगों को उस पर ट्रेन करना और पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को रोल आउट करना, मतलब लोगों को समझाना। जब तक कि एचआर डिपार्टमेंट या एचआर के लोग पॉलिसी और प्रोसीजर डिजाइन कर लें, बहुत अच्छे, बेशक बड़े अच्छे हाई फाई, लेकिन जब तक के लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे, उन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को रोल आउट नहीं करेंगे, तो किसी को समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो वो यूटिलाइज कैसे करेंगे। और आपने देखा होगा अक्सर इदारों में लोगों के पॉलिसी मैनुअल्स भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन लोगों को पता कुछ नहीं होता, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा होता इन टर्म्स ऑफ रोल आउट या दूसरी चीजों में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे चलते हैं जी। अब मैंने यहां पे एक छोटी सी स्लाइड बनाई है, आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा इसका टाइटल, व्हाई एम्प्लॉयज हैव लीव ड्यूरिंग प्रोबेशन। अब जो एम्प्लॉय है, अब वो देखें कंफ्यूज है बेचारा, इधर से उधर, उधर से उधर जा रहा है। शुरू में जब हम किसी भी नई जॉब शुरू करते हैं तो हम खुद बड़े कंफ्यूज होते हैं, इदारे का कल्चर नया होता है, लोग नए होते हैं, सिस्टम नया होता है, हमें कुछ पता ही नहीं होता। और अब ये बंदा कह रहा है नो वन हेल्प मी टू फिट इनटू माय न्यू एनवायरनमेंट, कि किसी ने मेरी मदद ही नहीं की कि मैं क्या करूंगा, क्या करना है मुझे इस इदारे में। जबकि दूसरी जानब ये अपने एम्प्लॉय कह रहा है, जबकि दूसरी जानब इदारा ये कह रहा है कंपनी ऑर्गेनाइज्ड ओरिएंटेशन एंड मेड फॉर्मल इंट्रोडक्शन, कि हमने तो आपके लिए ओरिएंटेशन भी अरेंज की थी और आपका इंट्रोडक्शन भी सबसे करा दिया था, अब हमारी तो इतनी जिम्मेदारी थी, बाकी आपने खुद करना है। अब ये देखें यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है ना, फिर वो अगेन एचआर डिपार्टमेंट और लाइन मैनेजर दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक प्रोसेस होता है जिसको हमने पिछली दफा एचआर साइकिल में डिस्कस किया था। कोई बंदा मुझे बताएगा, कोई भी बंदा हाथ खड़ा करके मुझे बता दे कि इस वक्त हम एचआर साइकिल में से कौन सी इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसके लिए अपना रोल प्ले करना है। कि ये जो स्लाइड हमें नजर आ रही है कि वो बंदा कंफ्यूज है और वो छोड़ना चाह रहा है, तो ये किस चीज को जो है प्रॉपरली नहीं किया गया ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से वो जो है ये स्टेज आई है। और हमने बहुत डिटेल से एचआर साइकिल में पढ़ी थी वो स्टेज। एनीवन प्लीज बताइए, नहीं तो मुझे बहुत मायूसी होगी। मुकम्मल खामोशी। ओहो अच्छा, एचआर साइकिल की दूसरी से तीसरी स्टेज कौन सी थी? अच्छा जी, वली मोहम्मद लशारी साहब आए।
जी वली साहब बताइए। सर आपने एक थ्योरी बताई थी वो मैस्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स की, कि मतलब उसमें आप सैलरी से लोगों को रिटेन नहीं कर सकते, वो एक हाइजीन कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट जो है वो पार्ट प्ले करता है। जी इरफान आप बोले, इरफान आप बोले। अच्छा मैं भाई बिल्कुल वह आपने ठीक कहा, लेकिन मैंने आपको एचआर साइकिल में हमने एक स्टेज पढ़ी थी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बाद इंडक्शन या ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब कोई भी नया बंदा हायर होके आता है और उसके लिए होता है, तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है, जो कि करनी चाहिए इदारे को बाकायदा। और अगर इदारा उसमें सही तौर पे रोल प्ले नहीं करता और लाइन मैनेजर और एचआर डिपार्टमेंट सही ओरिएंटेशन नहीं करते, तो फिर लोग प्रोबेशन में छोड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये अगर नेक्स्ट स्लाइड देखें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि रीजंस व्हाई एम्प्लॉइज लीव ड्यूरिंग प्रोबेशन। अनएबल टू फिट इन द न्यू एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया नया इदारा होता है, नया कल्चर होता है, नया एनवायरनमेंट होता है, तो जिसकी वजह से जो है तो वो अपने आप को फिट नहीं समझते और वो कहते हैं कि मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूं। क्लैश ऑफ वैल्यूज। हर इदारे की अपनी वैल्यूज होती है, हर इदारे का अपना सिस्टम होता है, तो मेरी वैल्यूज कुछ और है और मैं किसी एक ऐसे इदारे में चला गया हूं कि वो क्लैश ऑफ वैल्यूज है, कि जो है मेरी वैल्यूज से मुख्तलिफ है, तो फिर भी मैं अपने आप को मिसफिट तस्वर करता हूं। नो प्रॉपर ओरिएंटेशन और रिडक्शन, ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि इदारा, एचआर डिपार्टमेंट और लाइन मैनेजर ने इंडक्शन और ओरिएंटेशन उस बंदे को नहीं कराई, कि मुझे पता ही नहीं चल सका 1 महीने में 2 महीने में कि मैंने करना क्या है, मेरे रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरे विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स क्या है, तो मैंने चलना कैसे है। एटीट्यूड ऑफ अदर एम्प्लॉइज। पुराने लोगों का एटीट्यूड, बिहेवियर ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल नए लोगों को एडजस्ट करने में और एडजस्ट ना करने में, दोनों सूरतों में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमारे नए लोग पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं और हमारे नए लोग नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकते हैं। नॉट फिट फॉर द जॉब। और बाजों का ये भी होता है, हायरिंग गलत हो जाती है। मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम चंद फिल्टर्स लगाते हैं ना, टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन हर फिल्टर की अपनी अपनी लिमिटेशन है और बाजों का हम सही तौर पे जज नहीं कर पाते और रॉन्ग पीपल को हायर कर लेते हैं और हमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ये काम कर लेंगे, बट स्किल मैच नहीं हो रहे होते, नॉलेज मैच नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बंदा फिट नहीं होता उस जॉब के लिए। वर्कलोड। बाज़-औक़ात हम नए बंदे को इतना बड़ा वर्कलोड दे देते हैं कि हम समझते हैं कि बस यही आना है और सारे काम इसने करने हैं, और वो बेचारा शरीर नहीं बैठ जाता है, वो कहता है ये काम तो मुझसे होने नहीं है, वो अंडर प्रेशर हो जाता है और चला जाता है। और बाज़-औक़ात इसके अलावा भी होता है, नए बंदे को हम कुछ समझते ही नहीं है, उसको कोई काम ही नहीं देते और वो सारा दिन वेला होता है, फारिग होता है, तो वो कहता है यार मेरी तो इस इदारे में कोई जगह ही नहीं है। तो ये दोनों एक्सट्रीम की सूरत हाल है और दोनों सूरतों में लोग जो है छोड़ते हैं। एक्सट्रीम प्रेशर। भाई लोगों को आप एक्सट्रीम प्रेशर में रखते हो, इदारे से डराते हो, उसकी पॉलिसियों से डराते हो, ये तुम कहां आ गए हो, ये तो बहुत ही फजूल इदारा है, हम तो बस इधर बैठे हैं, हम तो बस इधर इसलिए बैठे हैं, ये तो फलां है, ये तो फलां है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पुराने लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिलसिले में, कि लोग या तो काम करते हैं या लोग काम छोड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने प्रोविजन का टच इसलिए दिया आपको क्योंकि प्रोविजन के बाद भी प्रोविजन इवेल्युएशन होता है जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का हिस्सा है। तो ये बड़ी सिंपल सी रीजन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई है, आपको समझ भी आ रही है, नजर भी आ रही है, तो इसमें आज सच कोई इतना इशू है नहीं। तो ये आप देखेंगे जब, तो ये आपको अपने ही उसमें बड़े फिट लगेंगे और सारा कुछ नजर आएगा। जी हमारा भाई। जी हमारे सब, आपका हैंड रेज हुआ है। अच्छा, अगर आप लोगों ने वार्निंग करनी होती तो प्लीज हैंड रेज ना किया करें, क्योंकि फिर वो मुझे रुकना पड़ता है, आपको टर्न भी देनी पड़ती है और फिर टाइम जाया होता है और फ्लो टूट जाता है मेरा। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं नेक्स्ट जाता हूं, इसको थोड़ा सा देखता हूं। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो सबसे पहला पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो गोल सेटिंग होता है। ठीक है जी, गोल सेटिंग। और ये गोल सेटिंग किसी भी वक्त इदारे में किसी भी इंप्लॉय के साथ उस वक्त शुरू किया जाता है
جب وہ یا تو نیا ہے ادارے میں اس وقت ہائر ہوا ہے, جیسے میں نے کہا کہ اچھا آپ ایک سیکنڈ اگر ہولڈ کریں, میری ایک کوئی ارجنٹ اور امپورٹنٹ کال ہے. سوری جی سوری, اصل میں وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ تھا. اچھا جی, گول سیٹنگ میں نے آپ کو کہا کہ جب کوئی امپلائی نیا آتا ہے اس وقت گول سیٹ کیے جاتے ہیں, یا پھر نیا سال شروع ہو رہا ہے اور پرفارمنس اپریزل کے لیے گول سیٹ کیے جاتے ہیں, پرفارمنس پلان بنایا جاتا ہے. اس کو ہم پرفارمنس پلان کہیں گے. بار بار میرے منہ سے پرفارمنس پلان نکلے گا تو پرفارمنس پلان کا مطلب گول سیٹنگ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب گول سیٹنگ کے لیے چند تھوڑی سی 3-4 پوائنٹ ہے جن کو میں آپ کو ایک گائیڈ لائن دوں گا. آپ نے ایک سمارٹ کا لفظ سنا ہوگا, SMART, اسمارٹ, اسپیسیفک, میجریبل, اٹینیبل, مینیجیبل اور ٹائم باؤنڈ اور ریئلسٹک. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ آپ کسی بھی بندے کے ساتھ جب اس کا پرفارمنس پلان بنائیں, اور پرفارمنس پلان ہمیشہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بنتے ہیں, کنسنسس سے بنتے ہیں اور کنسلٹیشن سے بنتے ہیں, اور 1 to 1 بننے چاہیے لائن مینیجر اور وہ جو سٹاف ہے اس کے درمیان, اور ایگری ہونے چاہیے اور سائن ہونے چاہیے. تو ایک تو اس کے میں آپ ایسے ٹاسک اسائن کریں جو کہ اسپیسیفک ہو, اسپیسیفک لکھے ہوئے ہو کہ جو یہ کام کرنا ہے اتنے مقدار میں کرنا ہے اور ان دنوں میں کرنا ہے یا اس ٹائم فریم میں کرنا ہے. اسپیسیفک اسائن میجریبل گول, اور ایسے گولز لکھیں اور ایسے گولز بنائیں اور ایسے گولز دیں جن کو آپ میجر کر سکیں. میجر سے مراد کل جب آپ پرفارمنس اپریزل کے لیے بیٹھے تو وہ آپ دیکھ سکیں, میجر کر سکیں, اس کو جان سکیں کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, خالی ہوا میں نہ ہو. مثال کے طور پہ 5 ٹریننگز کرنے تھے ایک کوارٹر میں. ایک کوارٹر میں 3 لوگوں کی ریکروٹمنٹ ہونی تھی 3 پوزیشنز کی. ایٹ دا اینڈ آف دی دسمبر پورے آرگنائزیشن کا پرفارمنس پلان یا پرفارمنس اپریزل کمپلیٹ ہونا تھا. اب آپ یہ دیکھیں نا, اس میں ٹائم بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, اسپیسیفک بھی ہے, اور آپ کل کو دیکھیں گے ہاں جی 3 لوگ لینے تھے, ہائر ہونے تھے, ہو گئے نہیں ہوئے, اچھا جی 2 ہوئے, 2 کیوں ہوئے جی, یہ ہو گیا, اچھا جی 1 بھی نہیں ہوا یا 3 ہو گئے. تو یہ میجریبل ہے. ٹھیک ہے, اسائن چیلنجنگ بٹ ڈویبل گولز. ہمیشہ اپنے سپروائزرز کو اور اپنے سٹاف کو آپ چیلنجنگ گولز ضرور دیں جس میں ان کی سکلز, نالج اور وہ ساری چیزیں ٹیسٹ ہوں, کیونکہ جب تک ان کا سکل اور نالج ٹیسٹ نہیں ہوگا وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے, وہ نئی چیزیں سیکھیں گے نہیں. آپ وہی بار بار کام, آپ نے دیکھا نا اکثر ہم اکتا جاتے ہیں, کام پورا نہیں کرتے, اور کیونکہ ہم بار بار وہی کام کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے لوگ جو ہے وہ پھر تھک جاتے ہیں. اور انکریج پارٹیسپیشن, اور ہر لیول پہ اپنے لوگوں کو آپ پارٹیسپیشن انکریج کریں, اس لیے یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی اخلاق احمد صاحب, ہیلو ہیلو, اچھا جی, پھر وہی بات ہوئی کہ جی بولیں. جی جواد. سر اسپیسیفک گول اور میجربل گول ڈفرنس رہا سر. اسپیسیفک گول اور میجربل گولس, گول یہ کہہ رہے ہیں ڈفرنس کیا رہا سر دونوں میں؟ نہیں, اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ ڈیفائنڈ ہو کرنا کیا ہے,
और मेजरेबल ये है कि वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी डिफाइंड हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, 5 ट्रेनिंग्स करने हैं एक क्वार्टर में, 6 महीने में 3 हायरिंग्स करने हैं। तो गोल सेटिंग में आपने 2 चीजों का ख्याल रखना है कि आपने दोनों एस्पेक्ट्स उसमें कवर करने हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, क्योंकि जब तक आप क्वांटिफाई नहीं करेंगे आप उसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे ये मैंने अभी 5 ट्रेनिंग्स की या 3 हायरिंग की एग्जांपल दी आपको, ठीक है। क्वांटिफाई होगा तो आप मेजर कर पाएंगे, क्वांटिफाई नहीं होगा तो आप मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है जी? किसी का कोई सवाल है कि हम आगे चलें? जी वली साहब। हेलो सर, गोल सेटिंग और जी सर, सुन सकते सर आपने? यार आपकी आवाज की बहुत शोर है वली, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बोलिए। सर अभी सुन सकते हैं? जी मैं सुन क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आप बोले, आप क्या बोल रहे हैं? सवाल पूछ। सर मैं गोल सेटिंग के हवाले से क्वेश्चन कर रहा था कि गोल सेटिंग और केपीआईज, अगेन हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो इनमें कोई डिफरेंस है या ये सेम चीज है? नहीं, ये सेम चीज है। और आपका सवाल भी आया था, मैं उस सवाल को देखूंगा क्योंकि हो सकता है आपके जहन में वही केपीआई फंस गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पिछले दिनों सवाल भी केपीआई का भेजा है, ठीक है। तो केपीआई वो होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो जब आप गोल सेटिंग करते हैं और परफॉर्मेंस प्लान बनाते हैं तो उसमें आप यही करते हैं ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक एचआर ऑफिसर के लिए क्या होंगे कि 3 बंदे हायर करने हैं, 4 ट्रेनिंग्स करवानी है, तो ये उसके केपीआईज है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या 10-12 लोगों का परफॉर्मेंस अप्रेजल्स पूरे करवाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेल्थ इंश्योरेंस के मसाइल हल करने। क्लियर हो गया जी? हम आगे चलते हैं। तो गोल सेटिंग के वक्त आपने इन चंद चीजों का ख्याल करना जरूरी है। अब जब आप परफॉर्मेंस प्लान बना लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, किसी भी क्या हो रहा है, मेरी आवाज मुझे खुद वापस आ रही है, किसी का माइक ऑन है मेरा ख्याल में, आप म्यूट करें। जब हम गोल सेट कर लेते हैं, परफॉर्मेंस प्लान बना लेते हैं, तो उसके बाद एम्प्लॉय परफॉर्म करना शुरू कर देता है और उसका लाइन मैनेजर उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता है डे टू डे में, और ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और मॉनिटर भी कर रहा होता है और सपोर्ट भी कर रहा होता है। क्योंकि जब तक आप परफॉर्मेंस प्लान बना लें, उसके बाद दूसरी स्टेज आती है सपोर्ट की। सपोर्ट प्लान द परफॉर्मेंस, दूसरी स्टेज है सपोर्ट द परफॉर्मेंस, और तीसरी स्टेज है इवेल्युएट द परफॉर्मेंस। तो जब आप प्लान बना लेते हैं और सपोर्ट नहीं करते तो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म माई ड्यूटीज, स्किल में बेशक मेरे पास जितनी ड्यूटीज है, स्किल्स है। एनेबलिंग इन्वायरमेंट जब तक नहीं होगा, अब इनेबलिंग इन्वायरमेंट में 3, 4, 5 चीजें आ सकती हैं। मतलब टूल्स है, मतलब मुझे लैपटॉप की जरूरत है तो मेरे पास होना चाहिए, मुझे ऑफिस में बैठने की जरूरत है तो मेरा कंफर्टेबल किस्म का ऑफिस होना चाहिए, मैंने फील्ड में जाना है तो फील्ड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मेरे पास होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं सपोर्ट द परफॉर्मेंस। और फिर तीसरे नंबर पे आती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो सपोर्ट में फिर फीडबैक होता है, आप लाइन मैनेजर जो है मेंटरिंग और कोचिंग करते हैं अपनी टीम्स की, और उनको बताते हैं बहुत सारी चीजें। और आगे ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट में सिर्फ लाइन मैनेजर नहीं सपोर्ट करना है, दूसरे लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उस बंदे का अपना होना है कि वो अपने साथ कितने सिंसियर हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए और अपनी चीजों के लिए कितना रोल प्ले करते हैं। और फिर उसके बाद आता है असेसिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल या असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है, या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सब एक चीजों के नाम है, एक चीज के बहुत सारे नाम है। वो 3-4 चीजों पे होता है। और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं परफॉर्मेंस में? पर्सनल क्वालिटीज, इस बंदे की पर्सनल क्वालिटीज क्या हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स, पंक्चुअलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोगों की पर्सनल क्वालिटीज होती हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो टूल्स बनते हैं या फॉर्म्स बनते हैं, उसमें पर्सनल क्वालिटीज का भी एक पोर्शन होता है कि जिसमें लोगों की जज की जाती है। दूसरे नंबर पे होती है अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। अब ये अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स कहां से आता है? ये अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स आपके परफॉर्मेंस प्लान से आता है। जो आप साल के शुरू में या पीरियड के शुरू में परफॉर्मेंस प्लान बनाते हैं, उसमें आप लोग टारगेट डिफाइन करते हैं। जो मैं अभी क्वांटिफाई की बात कर रहा था, वो टारगेट आप डिफाइन करते हैं या केपीआईज बनाते हैं या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाते हैं कि ये काम करने हैं। तो वो अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स होता है।
तो जो आपका परफॉर्मेंस प्लान का टूल होता है या फॉर्म होता है, उसमें पर्सनल क्वालिटीज भी होती हैं, उसमें टारगेट्स भी होते हैं। जॉब स्किल्स, अब हर जॉब को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन जॉब स्किल्स चाहिए होते हैं, और ये वो जॉब स्किल्स हैं जिनके अगेंस्ट किसी की भी हायरिंग होती है। अब हायरिंग में बहुत सारी स्किल्स मिल जाती है हमें, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमें 100% हायर बंदा नहीं मिलता कि 100% वही सारी स्किल्स हो जो हमें चाहिए। हम कभी 80% वाला ले लेते हैं, 90% वाला ले लेते हैं, तो फिर इदारे की जिम्मेदारी होती है कि वो स्किल को इनहांस भी करे, स्किल सिखाए भी सही। तो जॉब स्किल्स का भी जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल में बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, जब भी हम हायरिंग करते हैं तो हायरिंग सिर्फ नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स की बुनियाद पर नहीं होती, बल्कि पोटेंशियल्स की बुनियाद पे भी होती है कि इस बंदे में ग्रो करने के कितने पोटेंशियल हैं, ये बंदा कितना डायनामिक है, कितना कमिटेड है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, कितना सस्टेनेबल है, ताकि इन सारी चीजों को हम कहते हैं पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कि ये डेवलप कर पाएगा अपने आप को और कितने जल्दी डेवलप कर पाएगा। तो आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो मोस्टली इन 4 चीजों के अगेंस्ट होता है। ये जो चारों आपको स्क्रीन पे 4 मिनी बुलेट्स नजर आ रहे हैं, पर्सनल क्वालिटीज, अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट्स, जॉब स्किल्स और पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। तो जो भी एक अच्छा टूल आप बनाते हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल का फॉर्म बनाते हैं, तो उसमें इन 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है, और इन चारों चीजों को इवेल्युएट होना चाहिए मिड टर्म में, एनुअल में या प्रोविजन में, कि ये चीजें उस आपके टूल का हिस्सा हो, तभी आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम कहलाता है। और कंसोलिडेटिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सेसिंग परफॉर्मेंस, और इन सारी चीजों को जब आप डिफाइन करते हैं, इनके अगेंस्ट नंबरिंग देते हैं, रेटिंग्स देते हैं, इनके अगेंस्ट क्वांटिफाइबल और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डेटा लिखते हैं, तो फिर आपकी ये चीजें जाके जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बनती है और कंसोलिडेट होती है, और फिर आप ग्रेडिंग सिस्टम आता है। कुछ लोग ए में फॉल करते हैं, कुछ लोग बी में फॉल करते हैं, कुछ लोग सी में फॉल करते हैं, तो फिर इस तरह से हमारी जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है। तो इंशाल्लाह टूल्स पे हम कभी जाएंगे, टूल्स में आपको शेयर भी कर दूंगा सैंपल के तौर पे, आप उसको देख लीजिए और फिर उस पर हम कोई एक आध सेशन कर लेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है, कभी बहुत हाई फाई टूल ना बनाइएगा कि आपको बहुत अच्छे लगे नेट पे और आप उसको डाउनलोड करके अपने इदारे में इंप्लीमेंट कर दें। बहुत अच्छे मिलेंगे, मुश्किल भी मिलेंगे, आसान भी मिलेंगे, लेकिन जब तक वो टूल आपके अपने इदारे के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक नहीं होगा। कुछ इदारे इनिशियल लेवल पे होते हैं, कुछ मिड में होते हैं, कुछ बहुत एडवांस में होते हैं। एक तो अपने इदारे का लेवल देखना होता है, नंबर 2 इदारे की क्या स्टेज चल रही है, नंबर 2 लोगों का नॉलेज कितना है, लोगों के पास स्किल कितना है, वो इसको कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 आपने लोगों को ट्रेन करना होता है इन टूल्स पे, इन फॉर्म्स पे। एचआर डिपार्टमेंट का काम ही यही होता है, टूल्स को डिजाइन करना और फिर लोगों को उस पर ट्रेन करना। अब मैं जहां पे काम करता हूं इस वक्त एक्शन8 में, हमारा टोटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इंग्लिश में है, बट मैंने आज से 5 साल पहले मतलब मैंने ज्वाइन किया था 7 से 8 साल पहले, तो 5 साल पहले हमने ये डिसीजन किया और फिर उसके बाद हमने अपना पूरा वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो पूरा चैप्टर प्लस पूरे फॉर्म्स उर्दू में ट्रांसलेट किए अपने सपोर्ट स्टाफ के लिए, ड्राइवर्स के लिए, माली के लिए, ऑफिस बॉय के लिए, इनके लिए, और फिर उनको रोल आउट किया। और अब वो उर्दू में ही फिल करते हैं, उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में ही पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उनसे फिल करवाने का और अंग्रेजी में उनके साथ बात करने का कोई मकसद ही नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले तक उनके साथ परफॉर्मेंस प्लान भी और परफॉर्मेंस अप्रेजल भी अंग्रेजी में होते थे, जो कि एक फॉर्मेलिटी होती थी, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए फिर हमने, तो कहने का मकसद या ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि जब तक आप लोगों को समझाएंगे नहीं तो वो इफेक्टिव सिस्टम नहीं होता। तो आई होप कि ये बात भी आपके साथ क्लियर हो गई है सब लोगों को, बेशतर लोगों को। तो मैं इस स्लाइड के बाद मजीद आगे चलता हूं। शुक्रिया आपके फाइन और ये सारे ये मुझे देखने में मदद देते हैं कि चीजें क्लियर हो रही है माशाल्लाह से, वेरी मच क्लियर। थैंक यू अब्दुल हमीद साहब। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा अब जहां तो आप लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स बनाते हैं, अप्रेजल्स कर रहे होते हैं, जहां पे अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वहां पे मिस्टेक्स भी होती हैं। बाज़ औक़ात एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस में कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो कि बड़ी कॉमन होती है। तो मैं यहां पे आपके साथ कुछ कॉमन मिस्टेक्स शेयर करता हूं कि किस किस किस्म की
परफॉर्मेंस अप्रेजल के दौरान मिस्टेक्स होती हैं या हो सकती हैं। द हॉलो इफेक्ट, हॉलो इफेक्ट अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसमें हम जिसका मतलब ये होता है कि लाइन मैनेजर भी तो इंसान होते हैं ना भाई। आप में से बहुत सारे लोग मैनेजर होंगे और वो कोई एक आध, कोई दो, कोई तीन, कोई चार लोगों की परफॉर्मेंस को या टीम को मैनेज कर रहा होगा। तो आप लोग परफॉर्मेंस प्लान भी बनाते होंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करते होंगे। तो हम जहां पर जब मैनेजर इंसान होते हैं तो मैनेजर्स की अपनी क्वालिटीज भी होती हैं, मैनेजर्स की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं और मैनेजर के अपने बाइसेस भी होते हैं। मैनेजर का अपना फेवरेटिज्म भी होता है और मैनेजर के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होते हैं। ठीक है, अब आई होप कि आप इस बात से एग्री करेंगे। तो हॉलो इफेक्ट यह होता है कि वन ऑफ द मिस्टेक्स इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, कि मैं मिसाल के तौर पे अपनी किसी टीम के एक मेंबर को ये समझता हूं कि यार ये जो मेरी एबीसी टीम मेंबर है, मिसाल के तौर पे फायजा जो है, शी इज वेरी गुड इन रिपोर्ट राइटिंग, ये जब भी रिपोर्ट लिखती है तो बहुत अच्छी लिखती है और मुझे उनकी रिपोर्ट पसंद आती है। तो फिर मैं रिपोर्ट लिखने की वजह से ये अज्यूम करता हूं कि ये पंक्चुअल भी होगी, ये इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बड़ी अच्छी होंगी, ये फ्लेक्सिबल भी होगी। अब मैंने एक क्या चीज देखी है, रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग मुझे उसकी पसंद है, तो मैंने सॉरी बाकी चीजों को असेस नहीं करता, और रिपोर्ट राइटिंग क्योंकि मुझे अच्छी लगती है उसकी और रिपोर्ट राइटिंग में वो बेहतर है, तो मैं ये समझता हूं वो सारी चीजों में बेहतर होगी। तो रिपोर्ट राइटिंग की बेस के ऊपर मैं उसके बाकी भी सारे उसको रेटिंग्स या नंबर बहुत अच्छे दे देता हूं। तो ये हॉलो इफेक्ट है कि किसी एक चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने सब चीजों में डाल दिया, और इसके बरक्स ये भी हो सकता है कि किसी एक चीज का नेगेटिव इंपैक्ट मैं और भी सारे असर में डाल सकता हूं कि फायदा टाइम पे नहीं आती हैं। जब वो टाइम पे नहीं आती है तो अपना काम भी टाइम पे नहीं करती होंगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी खराब है, उनका लोगों के साथ मेल जोल भी खराब है, उनके टारगेट्स भी हमेशा अचीव नहीं होते होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये हॉलो इफेक्ट है नेगेटिव साइड पे। जबकि लाइन मैनेजर को चाहिए क्या कि हर चीज को बहुत ओपनली और अनबाइस्ड तरीके से देखना चाहिए, अपने पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स को। हो सकता है एक बंदा रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अच्छा है लेकिन वो पंक्चुअल नहीं है, तो उस पर फिर कंसंट्रेट करें। एक बंदा पंक्चुअल बहुत अच्छा है बट वो अपने टारगेट अचीव नहीं करता, फिर उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो हॉलो इफेक्ट की आपको समझ आ गई होगी। दूसरा एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग, एवरेज टेंडेंसी। कुछ मैनेजर होते हैं वो बहुत सेफ प्ले करते हैं बस एवरेज में रखते हैं हर चीज, बस ना बहुत ज्यादा अच्छी तारीफ करते हैं ना बहुत ज्यादा बुरा लिखते हैं। बस वो यही होता है कि यार तुम भी अपना काम करो, तुम्हारी भी नौकरी लगी है, मेरी भी नौकरी लगी है, तो बस वो एवरेज नंबर ही देते हैं। बहुत अच्छे भी नहीं देते, बहुत बुरे भी नहीं। बहुत बुरे इसलिए नहीं देते कि यार कहीं पे इसकी नौकरी पे इफेक्ट ना हो जाए, बहुत अच्छे इसलिए नहीं देते कि यार कहीं ये है कि ये बहुत फने खान ना बन जाए कि जी मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म हूं। बस एवरेज में रखते हैं कि इसकी भी नौकरी लगी रहे, मेरी भी लगी रहे और बस हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा रहे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवरेज टेंडेंसी। तो वो मैनेजर ज्यादातर एवरेज में ही रहते हैं, और जबकि ये भी गलत तरीका है, ये भी नहीं होना चाहिए। टू lenient और टू स्ट्रिक्ट। कुछ लाइन मैनेजर बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और कुछ लाइन मैनेजर बहुत नरम होते हैं। अब ये भी दोनों चीजें जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। आप बहुत ज्यादा जो है तो वो जब करेंगे लीनियंसी दिखाएंगे या बहुत ज्यादा आप लोगों को रूम देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। रूम जरूर दें, बट मेरा कहने का मतलब है बहुत ज्यादा आप जब परफॉर्मेंस की भी परवाह नहीं करेंगे, लोगों की परफॉर्मेंस प्लान भी नहीं बनाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी नहीं करेंगे, तो वो भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये भी लाइन मैनेजर की टेंडेंसी होती है कि बाज़ औक़ात बहुत सख्त होते हैं और बाज़ औक़ात बहुत लीनियंट होते हैं। अवेलेबल इंफॉर्मेशन इफेक्ट। बाज़ औक़ात ये होता है मैनेजर जो है ये कर रहे होते हैं कि सिर्फ उस चीज पे फीडबैक देते हैं या उस चीज की बात करते हैं जिसके इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है, और जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती वो हम देखते ही नहीं है और उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल ही नहीं करते। तो ये भी एक मिस्टेक होती है, क्योंकि एज ए लाइन मैनेजर एबीसी का अच्छा या बुरा, उसका इंक्रीमेंट, उसकी प्रमोशन, उसकी डिमोशन, उसके इंक्रीमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेरी रिकमेंडेशन पे होने हैं, उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल की रिकमेंडेशन पे होने हैं। तो फिर एज ए लाइन मैनेजर मेरी ये दोनों प्रोफेशनल भी और पर्सनल भी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं उसको अनबाइस तरीके से देखूं, ओपन देखूं और ट्रांसपेरेंट अंदाज में देखूं। जो चीजें अच्छी हैं उनको हाईलाइट करूं, जो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है उनको भी हाईलाइट करूं, और जो सपोर्ट देनी है वो भी दूं। ठीक है, और जहां जहां चीजों पे उसने इंप्रूव करना है वो भी करें। अदरवाइज आपका जो अप्रेजल है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। और सबसे आखिरी पॉइंट, आखिरी बुलेट, पर्सनल बायस एंड ब्लाइंड स्पॉट्स।
میں نے شروع میں کہہ دیا تھا ہم انسان ہیں, ہماری پرسنل لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں, ہمارے پرسنالٹی کلیشز بن جاتے ہیں کچھ لوگوں سے, کچھ لوگوں کی سوری ٹو سے ہمیں شکل اچھی نہیں لگتی, کچھ لوگوں کا ہمیں کپڑوں کا سٹائل اچھا نہیں لگتا, کچھ لوگوں کے ہمیں رنگ اچھے نہیں لگتے, کچھ لوگوں کا ہمیں ہیئر سٹائل اچھا نہیں لگتا, تو ہم ان چیزوں کو بھی پرفارمنس کے ساتھ مکس کرتے ہیں. جبکہ پرفارمنس اپریزل کو آپ جتنا پڑھیں گے, جتنا اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے, آپ کو چیزیں وہ ملیں گی کہ ہم نے پرسنل نہیں ہونا, ہم نے پروفیشنل چیزوں پہ, پروفیشنل وہ جو پرفارمنس پلان بنایا ہے اس پہ, اور آرگنائزیشن کے سسٹمز کے مطابق جو ٹول ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے. پرسنل لائکس اور ڈس لائک پہ بات ہم نے نہیں کرنی. جی ہارون صاحب. السلام علیکم سر. یہ وعلیکم السلام. پوچھنا بلکہ چاہ رہی تھی کہ یہ پرسنل بائس اور بلائنڈ اسپاٹس کو ہی اوائڈ کرنے کے لیے ہم پھر 360 ڈگری پہ جاتے ہیں پرفارمنس اپریزل پہ, تاکہ صرف ایک ہی بندہ اچھا میں نہ رہے, وہ بھی ہوں تو پھر اتنا افیکٹ نہیں آئے گا اس پہ. آپ نے اچھی بات کی ہے, لیکن میں 360 میں نے کچھ ٹائپس لکھی تھی, میں 360 میں اینڈ پہ آتا, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ 360 کے لیے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. 360 کو کمپائل کرنا, کنسولیڈیٹ کرنا بہت چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے, اور آپ ہر پوزیشن کے لیے 360 کر بھی نہیں سکتے, کیونکہ ہر ادارے کی اپنی لمیٹیشن ہوتی ہیں ٹائم وائز اور ریسورسز وائز. تو ہر بندے کا 360 کرنا پاسبل نہیں ہوتا. بہت سارے اداروں میں, اگین میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں میں اسی کی ایگزامپل بڑے آسانی سے دے سکتا ہوں. ایکشن ایڈ میں ہمارا 360 ہوتا ہے, لیکن صرف مینیجرز کا, جو ایس ایم ٹی سینئر مینجمنٹ ٹیم ہے جس میں سارے مینیجرز اور ہیڈ شامل ہیں, ان کا 360 ہوتا ہے. ہر بندے کا 360 نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مور اور لیس ہر پوزیشن کے لیے 360 کرنا پاسبل نہیں ہوتا. تو کچھ اداروں میں 360 چلتا ہے, لیکن اسپیسیفک پوزیشنز کے لیے. اچھا جی, اب میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا تھا کہ پرفارمنس مینجمنٹ کی جو بیسک چیز ہے وہ جو فالو کرتی ہے وہ فیڈ بیک میں فالو کرتی ہے. اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کو فیڈ بیک دینا ہے, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کسی کو اس کے منہ پہ بتانا کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے یا وہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, کیونکہ ہم تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہیں اور خامیاں نکالنے میں تو ہم بڑے ماہر ہیں, لیکن خامیاں نکالتے ہیں ہم پیٹھ پیچھے. منہ پہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ رپورٹ آپ نے لکھی ہے بالکل غلط ہے, یا وہ آپ نے بہت اچھی لکھی ہے مثال کے طور پہ, یہ بہت مشکل کام ہے. فیڈ بیک دینا بہت مشکل ہے, اور ایک اور بات, فیڈ بیک لینا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. جی شفیع صاحب. اچھا جی, شفیع صاحب کا ہاتھ آیا تھا لیکن کوئی آواز نہیں آئی. جی شفیع صاحب. سر یہ 360 رول بتا دیجئے گا کہ اس کو ڈیفائن کر دیں. ہلو, کس کو؟ سر 360 جو رول ہے, آپ کی آواز کٹ گئی مجھے سمجھ. یار 360 میں خود جانبوجھ کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میں سمجھ گیا آپ کا سوال. جی میں بتا رہا ہوں. 360 یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک بندے کا اپریزل تمام اینگل سے کرواتے ہیں. 360 وہ ہے نا ڈگریز ہے نا, وہ جو ڈی پڑھتے تھے, اور اس کے 360 کا مطلب ہے چاروں طرف سے, کہ کسی بھی بندے کا اپریزل ان تمام لوگوں کو دے دیتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لوگ, مطلب اس کے سپروائزر سے, اس کے مینیجر سے, اس کے دوسرے پی ایس سے, کچھ باہر والوں سے بھی اور کچھ اندر والوں سے بھی, جن سے میرا واسطہ پڑتا ہے, میرا اپریزل فارم ان سب کو بھیج دیا جاتا ہے اور ان سے رائے لی جاتی ہے میرے اپریزل سسٹم میں. تو اس کو 360 کہتے ہیں, اور 360 کا مطلب ہے کہ ہر اینگل سے. لیکن 360 مشکل کام, اور بہت اس میں ایفرٹ چاہیے, بہت ریسورسز چاہیے, اور بہت لمبا سسٹم چاہیے اس کو کرنے کے لیے. اس لیے بہت کم اداروں میں کیا جاتا ہے, اور صرف سیدھا پوزیشنز کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ادارے میں اب سارے ہیڈز کا میرا جو اپریزل ہوتا ہے, میرا لائن مینیجر تو کرتا ہے, اور وہ میرا لائن مینیجر پھر 360 پروسیس کرتا ہے. ہیڈ آف فائنانس سے بھی وہ فیڈ بیک لیتا ہے کہ ایچ آر کے بندہ آپ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے اور یہ کیسا ہے اپنے کام میں. وہ ہیڈ آف رینک کو بھی بھیجتا ہے میرا اپریزل.
वो रीजनल प्रोग्राम मैनेजर्स को भी मेरा अप्रेजल भेजते हैं और फिर वहां से जो फीडबैक आता है फिर वो मेरे साथ शेयर करता है, लेकिन उनके नाम नहीं बताता कि किसने क्या लिखा है, लेकिन ये जरूर बताते हैं मुझे कि लोगों की आपके बारे में क्या राय है। जी एहसानुल्लाह साहब। ठीक है सर, थैंक यू। जी क्लियर। थैंक यू। एहसानुल्लाह साहब आपका हाथ आया था। सर हेलो इफेक्ट को रिपीट कर दें। जी किरण वहाब। जरा हेलो इफेक्ट को रिपीट कर दें। ठीक है मैंने आपका सवाल सुन लिया जी। जी मुझे किरण वहाब। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आप बोले। जी आ रही है, बोले। सवाल ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो फॉर्म होता है वो हम किससे फिल करवाते हैं? हम अपने एम्प्लॉयज के फॉर्म के लिए, हम उसके परफॉर्मेंस के लिए हम किससे पूछें, या वो फॉर्म खुशी से फिल करवाना है किसी और से? मैंने शुरू में बताया था कि ये 1 to 1 होता है, तो किसी और से नहीं करवाना हमने, या वो खुद कराएगा या हम करेंगे। उसमें होता है आईडीएल के कुछ सेक्शंस बने होते हैं, कुछ इंप्लॉय करता है, कुछ उसका लाइन मैनेजर करता है, किसी और से नहीं करवाना हमने जाके। ठीक है, तो ये आप दोनों का म्यूचुअल होता है, और 1 to 1 होता है और कॉन्फिडेंशियल भी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1 to 1 है, कॉन्फिडेंशियल है, और उसमें सेक्शंस होते हैं, कुछ सेक्शंस लाइन मैनेजर फिल करता है और कुछ सेक्शंस इंप्लॉय खुद फिल करता है। हालो इफेक्ट ये है मेरे भाई कि जब किसी भी एक पॉजिटिव चीज का असर हम सब में डाल दें कि मैं कपड़े अच्छे पहनता हूं, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये तो बंदा ही शानदार है, इसकी हर चीज शानदार है। लेकिन अगर किसी चीज का नेगेटिव, आपको मेरा हेयर स्टाइल नहीं पसंद, तो आप कहते हैं ये बंदा ही फजूल है, क्योंकि इसके बाल फजूल है तो ये कपड़े भी फजूल पहनता होगा, ये घर में भी गलत तरीके से बात करता होगा, ये दोस्तों में भी मशहूर नहीं होगा। तो इसको हालो इफेक्ट कहते हैं कि जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज को तमाम चीजों पर असरअंदाज करते हैं। हाउ टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब फीडबैक देना, और मैंने आपको कहा कि बहुत मुश्किल काम है, और फीडबैक हमेशा कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। वो कंस्ट्रक्टिव कब हो सकती है? जब उसके पीछे कोई पर्पस हो। पर्पस से मुराद कि वो पर्पसफुल हो, कोई ना कोई मकसद भी हो। आपने देखा होगा हम अक्सर चीजों के गुजर जाने के बाद आपस में बहस कर रहे होते हैं, तुमने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर उसने ये किया, कोई पर्पस नहीं है। जो चीज हो गई वो हो गई, अब उसको हमें आगे फिक्स करना है ताकि ये दोबारा चीज ना हो। सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेटिंग से मुराद एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीडबैक के लिए, और टाइमिंग कि जो चीज जब हो रही है उसी वक्त फीडबैक देनी चाहिए। एक रिपोर्ट आज मुझे आई है, वो गलत आई है, और मैंने रख दिया कि अच्छा यार इसका जब एनुअल अप्रेजल आएगा तो मैं इससे रिपोर्ट पे बात करूंगा। हो सकता है सामने अप्रेजल के आने से पहले 3 रिपोर्टें और ड्यू हो, और वो वही मिस्टेक्स दोबारा उसमें हो जी। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फीडबैक में। इसलिए मैं कह रहा था कि लाइन मैनेजर और सुपरवाइजरी को एक मुस्तकिल अंदाज में एक खास वक्फे के बाद आपस में बैठना चाहिए फीडबैक के लिए और परफॉर्मेंस की मीटिंग्स के लिए। और फीडबैक हमेशा फॉरवर्ड फोकस होनी चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था ना, तुमने ये किया था तो फिर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई जो हो गया उसको जाने दें, अब आगे क्या होना है और कैसे करना है, फॉरवर्ड फोकस, कोई नतीजा उसमें से निकालें और फॉरवर्ड फोकस करें। फिर का ये मतलब है कि दोनों की उसमें पार्टिसिपेशन हो। सिर्फ मैं बोल रहा हूं और मेरा सुपरवाइजर सुनता जा रहा है, या वो सिर्फ वो बोल रहा है और मैं सुनता जा रहा हूं, तो ये नहीं। कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन बेहतर होती है, और जहां पर 1 वे कम्युनिकेशन होती है उसका कोई पर्पस भी अचीव नहीं होता, और वो फिर कुछ हैप्पी एंड नहीं होता उसका। ठीक है, वैसे हम अपने स्कूलिंग में देखें, स्कूल सिस्टम्स में गए देखें, सिर्फ टीचर बोल रहे होते हैं, बेचारे बच्चे सुन रहे होते हैं। बच्चा कभी ये कह सकता है कि सर ये आप क्या बोल रहे हैं, ये आपने ठीक नहीं बोला। अब तो हम सोशल सेक्टर में काम करते हैं ना एक नर्से से, हमारी तो आदतें खराब हो गई ना, हम तो कह देते हैं, लेकिन अदरवाइज 2 वे कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होती है। रिस्पॉन्सिव हो, मतलब चीजों को रिस्पॉन्सिबल अंदाज में लाए और सुने, और फिर उसको उसी अंदाज में रिस्पॉन्स भी करें। एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को गलत फीडबैक दे रहा हूं, मतलब नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूं, तो मेरे पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसने वाकई ही यह गलत काम किया है और इसमें इसकी गलती है। और अगर मेरे पास एक्यूरेट डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर मैं फीडबैक भी कंस्ट्रक्टिव नहीं दे सकता। बैलेंस होनी चाहिए फीडबैक हमेशा। इससे यह मुराद है कि बेशक बुरे से बुरा काम किया है, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा अच्छाई करें और फीडबैक को हमेशा पॉजिटिव से शुरू करें।
बेशक आपने बुरी फीडबैक देना है, किसी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन आप उसमें पॉजिटिव बात से शुरू करें। जब आप पॉजिटिव बात से शुरू करते हैं तो अगला सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जब आप शुरू में नेगेटिव करते हैं तो वो अपने माइंड के स्विच ऑफ कर देते हैं। अब हम अपने आप को देखें ना, हमें दिन में कितनी दफा फीडबैक मिलती है अपनी फैमिली से, घर वालों से, मैनेजर से, कोलीग से। अच्छी बात हो तो हम सुन लेते हैं, बुरी बात हो तो हमारा माइंड ऑफ होता है, हम दिल में कह रहे होते हैं बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको क्या पता, इनको कुछ पता ही नहीं है। कंप्रीहेंशन का मुराद ये है कि आप जब फीडबैक दे रहे हो तो उसको वक्फे वक्फे से कंप्रीहेंड करें, उसको दोबारा कंक्लूड करें। वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक बात आपके पास है वो आपकी है, जब आपने एक बंदे को बता दिया तो वो बात फिर जमाने की होगी। स्टार्ट विथ पॉजिटिव, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, फीडबैक हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट। स्टाइल में ले, उसको मजीद आप आगे से आगे ना बढ़ते जाएं और उस पर मजीद नेगेटिव चीजें ना निकालते जाएं, बल्कि उसमें रिजॉल्व करें चीजों को और रेजोल्यूशन पे आए। अब रिसीविंग फीडबैक, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, हम जब किसी को सुनना ना आते हैं तो हमारे रिएक्शंस कुछ ऐसे ही होते हैं। अब रिसीविंग फीडबैक, जैसे फीडबैक देना बहुत मुश्किल है, ऐसे फीडबैक लेना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तारीफ तो बहुत खुशी से सुनते हैं, बट हमें जब कोई बंदा एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट या क्रिटिसिज्म बताए तो हम जरा बड़े ओखे से हो जाते हैं। तो वो कहते हैं फीडबैक लेने के लिए क्या जरूरी है, हैव एन ओपन माइंड। मैं उस वक्त तक चीजें सीख ही नहीं सकता, मैं उस वक्त तक अपनी बेहतरी ला ही नहीं सकता जब तक कि मैंने ओपन माइंड के साथ चीजों को सुनना शुरू नहीं करता। और जिस दिन मैंने चीजों को ओपन माइंड के साथ और पॉजिटिवली सुनना और लेना शुरू कर दिया, मेरा सीखने का
लोग बहुत तल्ख बात आपको बहुत आराम से कह जाते हैं, बट उसका यह मतलब नहीं होता कि वो बात बहुत हल्की थी, वो बात बहुत भारी थी, बट उनके पास इतना अच्छा अंदाजे बयान होता है कि वो, तो इसलिए कहते हैं मीनिंग को सुनना चाहिए, आप उसका मतलब सुने और समझे, सीक आउट रेजोल्यूशन, और एंड पे रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ तय करके उठे, कुछ ना कुछ फैसला करके उठे, गिव गाइडेंस, और आप कुछ इस तरह से उस चीजों को लें और सुने कि वो आपको गाइड करे, वो आपका सपोर्ट हो, ताकि आपको वो चीज समझ भी आए और फिर आप फ्यूचर में वो मिस्टेक ना करें। यूटिलाइज इफेक्टिवली, और जो कुछ आपको कहा जाए, जो कुछ आपको बताया जाए फीडबैक के अंदाज में, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, हम उसको यूज करें। क्योंकि होता क्या है, हमें फीडबैक मिल गया, मीटिंग खत्म हो गई, हमने सब कुछ उधर छोड़ दिया। बाजों का हम नोट्स लेते हैं, बाजों का नहीं भी लेते, नोट्स लेते भी हैं तो वो कभी हम खोल के देखते नहीं है। तो ये आपने उसको यूज भी करना है, अदरवाइज फीडबैक लेने और देने का कोई मकसद ही नहीं है अगर हमने यूज नहीं करना उसको, और अगर हमने आगे जाके देखना नहीं है उसको। क्या जो ये स्लाइड थोड़ा सा फीडबैक के ऊपर मैंने बात की है, देने और लेने के ऊपर। फीडबैक एक इतना लंबा टॉपिक है कि इस पे हम जितनी बात करें, इस पे 2-3 दिन की हम ट्रेनिंग कर सकते हैं जनाब, लेकिन फीडबैक जो है वो लेना और देना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे थोड़े से मैसेजेस आ जाए क्लैरिटी के या गॉट इट के या यस के या नो के, तो मुझे समझ आ जाएगा। जुमा खान साहब आपका थैंक यू, आपने पहले मैसेज कर दिया। शफी साहब, जाकिरुल्लाह साहब, जवाद शाह साहब भी, अब्दुल हमीद साहब भी क्लियर हो गए हैं जी, फातिमा भी क्लियर हो गई, किरण भी क्लियर हो गई हैं, क्लियर है जी। इसका मतलब है मेजॉरिटी को ये चीजें समझ भी आ रही हैं और हम सब साथ साथ हैं। आर टॉपिक्स आर क्लियर, वेरी गुड। सब अच्छे की रिपोर्ट जब आती है तो मैं थोड़ा सा डरता भी हूँ, लेकिन अब डिस्टेंस लर्निंग में और ये ऑनलाइन लर्निंग में ये बात होती है कि यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो मैं अब इसको सब अच्छे की रिपोर्ट को अच्छा ही समझता हूँ। अच्छा, ये अगली स्लाइड पे आप देखें, मैंने कुछ ग्रीन और रेड थंब के हिसाब से दिए हैं आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। तो ये आप पढ़ लीजिए, वहां बड़ा क्लियर है कि फीडबैक इज पॉजिटिव इफ इट इज क्लियर ऑफर फॉर द रिसीवर बेनिफिट, लीव्स द रिसीवर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू डू, एम्प्लॉयज, और उसके दूसरे जानब रेड है, फीडबैक इज नेगेटिव इफ इट इज परसीव्ड एज थ्रेटनिंग, डिमांड ऑफ चेंज, अराइजेज विद इन ए हायरार्की, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये बड़ी क्लियर बातें हैं, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी क्लियर हो जाएंगी। और इसकी अगली 2 स्लाइडों में मैंने थोड़ा सा लाइन मैनेजर के लिए बात की है, और ये भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फीडबैक जो है वो लाइन मैनेजर का क्या रोल होता है, और लाइन मैनेजर किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खसूसन फीडबैक के लिए और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, 1 घंटा हो गया, हमारे पास आधा घंटा हो रहा है और अभी हमने क्वेश्चंस की जानिब भी जाना है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये एक स्लाइड है आखिरी जिसपे मैं थोड़ा सा टाइम की लर्निंग आज के सेशन के देना चाहूंगा। आप देखेंगे 3 कॉलम्स है, लाइन मैनेजर, एम्प्लॉय और एचआर डिपार्टमेंट, और ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हिसाब से आपको बताएंगे कि कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा वो लाइन मैनेजर भी होगा, एम्प्लॉय भी होगा। और एचआर डिपार्टमेंट क्या होगा, कंसल्ट और इन्फॉर्म। एचआर डिपार्टमेंट को आप कंसल्ट भी कर सकते हैं और इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, बट ये होगा 1 to 1 ही है। दूसरा लाइन मैनेजर लीड द डेवलपमेंट एंड एग्री एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस। एम्प्लॉय जो है उसमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन करेगा, लाइन मैनेजर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको डेवलप भी करेगा और ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन करेगा। और एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, डेवलप एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड टूल्स आर इन प्लेस। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब तक टूल्स आर इन प्लेस नहीं है, और वो एचआर की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा टूल जो कि इदारे की जरूरत के मुताबिक है वो इन प्लेस है और लोग उस पर क्लियर भी है। वो जो अगला पॉइंट है मैंने लिखा है इसमें, एचआर में ही देखें आप, नेक्स्ट बुलेट, तीसरा बुलेट, बिल्ड कैपेसिटी ऑफ लाइन मैनेजर्स, कि एचआर की जिम्मेदारी है कि वो लाइन मैनेजर्स और स्टाफ की इस तरह से ट्रेनिंग करें कि वो जो है